to all my kutti lovely challams. Welcome, சுஸ்வாகத்தம் to Jolly Jolly Hindi class. கேர்ள்ஸ்க்கு அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதே மாதிரி தான் போயட்ஸ், தட் இஸ் கவி. அவங்களுக்கும் தன்னோட போயம்ஸ், காவியங்களை அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ புரிஞ்சிருக்குமே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு. ஓ எஸ், ஹிந்தி வியாக்கரணில் உள்ள அலங்கார். Very awesome topic. Don't skip the video. Watch till end. Okay? Now let's begin. Alankar split பண்ணி பார்த்தோம்னா alam plus kar. Alam க்கு meaning alankrit plus kar க்கு meaning करने वाला. That is alankrit करने वाला. In short, decorator. काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं. The elements that enhance the beauty of poetry are called alankar. Very simple meaning है ना. Okay, चलो अलंकार के भेद देखते हैं. That is types of अलंकार. अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं. पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार. இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம शब्द अलंकार தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ठीक है. शब्द अलंकार परिभाषा डेफिनेशन. काव्य में जहाँ शब्दगत चमत्कार की प्रधानता होती है तथा काव्य का सौंदर्य शब्द योजना के कारण होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है. इन पोइट्री where there is predominance of lexical miracle and the beauty of poetry is due to the word plan, there is शब्द अलंकार. उदाहरण रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति से शब्दगत चमत्कार की प्रधानता है. இப்போ இந்த சென்டென்ஸை பாருங்க. ரகுபதி ராகவ ராஜாராம், இதில் வந்து ஒவ்வொரு வேர்டுலேயும் ர லெட்டர் தான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் ஆயிருக்கு ஏன்னா. ஸோ இதைத்தான் शब्द अलंकारன்னு சொல்லப்படுது. ठीक है, समझा. शब्दालंकार के तीन प्रमुख भेद हैं. 3 मेन टाइप्स. अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार. இப்போ अनुप्रास अलंकार 5 टाइप्स. पहला चेकानुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा लाठानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास, पांचवा अंत्यानुप्रास. ठीक है. Now let's see one by one. अनुप्रास अलंकार डेफिनेशन பார்க்கலாம். परिभाषा. जहाँ काव्य में वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है. वेरी सिंपल. Where there is frequency of letters in poetry, there is अनुप्रास अलंकार. For example, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, इले என்ன लेटर फ्रीक्वेंटा यूஸ் ஆயிருக்குது? च. ठीक है. कालिंदी कुल कदम की डरनी, इதில் क लेटर फ्रीक्वेंटा யூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒரு லெட்டர் இன் அ போயம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் ஆச்சுன்னா அங்கே தான் अनुप्रास अलंकार இருக்குன்னு அர்த்தம். ठीक है. नेक्स्ट इज अनुप्रास अलंकार के भेद, टाइप्स ऑफ अनुप्रास अलंकार. फर्स्ट वन, पहला चेकानुप्रास अलंकार. जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए वहाँ चेकानुप्रास अलंकार होगा. Where a letter appears twice, there will be चेकानुप्रास अलंकार. जैसे इस करुण कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है. இதில் ஒரு லெட்டர் 2 டைம் எங்கே யூஸ் ஆயிருக்கு? கருண் கலித், क लेटर है ना. नेक्स्ट इज वृत्यानुप्रास अलंकार. जहाँ कोई वर्ण अनेक बार आए वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होगा. Where a letter appears many times, there will be वृत्यानुप्रास अलंकार. जैसे चंदन ने चमेली को चम्मच से चटनी चटाई. इधर एंद लेटर मेनी टाइम्स यूज आयिरुक्कु? च है ना. तीसरा लाठानुप्रास अलंकार. जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन समझने पर उनका अर्थ भिन्न प्रतीत हो, वहाँ लाठानुप्रास अलंकार होगा. Where words with the same meaning occurs
more than once, but their meaning appears to be different when understood. Okay, जैसे राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही. राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही. இதோட மீனிங் என்னன்னா, ஜிஸ்கே ஹிருதய மே ராம் है, யார் மனசுல ராம் இருக்காங்களோ உசே விபத்தி நஹி ஹோத்தி, அவங்களுக்கு எதுவுமே கெட்டது நடக்காது. சதா शुभ होता है, எல்லாமே நல்லதே நடக்கும். जिसके हृदय में राम नहीं है, यार मनसला राम இல்லையோ उसके लिए शुभ भी विपत्ति बन जाता है, அவங்களுக்கு நல்லதும் கெட்டதா மாறிடும். எவ்வளோ அருமையான மீனிங் பாருங்க. ஜஸ்ட் காமா மாறுறதுனால எல்லாமே மாறிடுச்சு, டோட்டல் மீனிங்கே மாறி இருக்கு பாருங்க. பட் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சேமா இருக்கு, है ना? அதான் लाटानुप्रास अलंकार. चौथा श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा. Where rhyme in hearing or last letter of the word is the same, there will be श्रुत्यानुप्रास अलंकार. जैसे कहत नठत रिजत खिजत मिलत खिलत लजिजात. இப்போ எல்லா வேர்ட்லேயும் லாஸ்ட் லெட்டர் சேமாக இருக்குது, தட் இஸ் த லெட்டரில் முடியுது, ஏன்னா ஸோ அது நல்ல ரைமிங்காக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதுதான் श्रुत्यानुप्रास अलंकार. Got it? पांचवा अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पंक्तियाँ का अंतिम वर्ण समान हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होगा. Where the last letter of the line is the same, there will be अंत्यानुप्रास अलंकार. जैसे नाथ शंभु धनु भंज निहारा होय है कोई एक दास तुम्हारा. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் லாஸ்ட் லெட்டர் என்னது ரா, செகண்ட் லைனில் லாஸ்ட் லெட்டர் ரா. ஸோ இதுதான் अंत्यानुप्रास अलंकार. समझा आप लोगों को? शब्द अलंकार अनुप्रास अलंकार அதோட भेद பார்த்தாச்சு. नाउ नेक्स्ट वन इज यमक अलंकार பார்க்கலாம். डेफिनेशन परिभाषा, जिस काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ अलग अलग हों वहाँ यमक अलंकार होता है. Poetry in which the frequency of a word occurs more than once and their meanings are different, there is यमक अलंकार. जैसे उस काली घटा का घमंड घटा. இப்போ இங்கே घटाங்கிற வேர்டு ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல பாருங்க காலி घटा, இந்த இடத்துல மீனிங் बादलों का समूह, ग्रुप ऑफ क्लाउड्स. नेक्स्ट घमंड घटा, இந்த இடத்துல घटाக்கு மீனிங் கம் ஹோனா, தட் இஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறது, குறையிறது. ஓகேயா? அப்போ இதோட மீனிங் என்னன்னா the pride of black clouds decreased. ஓகேயா? சேம் வேர்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் ஆயிருக்கு, பட் மீனிங் டிஃபர் ஆச்சுன்னா அதுதான் यमक अलंकार. ठीक है, गुड. नेक्स्ट श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है. Where a word has many meanings attached to it, there is श्लेष अलंकार. जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उभरे मोती मानुष चून. इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है. இப்போ இந்த தோஹால பானிங்கிற வேர்டு 3 பிளேஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகேயா? ஆனால் இந்த பானி தான் அலங்கார். ஓகே, இந்த மானுஷ் அப்படின்னா ஹியூமன், அது பானியோடு சேரும்போது வினம்ரதா மீனிங் வரும், தட் இஸ் பொலைட்னஸ். மோத்தி பேர்ல், அது பானியோடு சேரும்போது சமக் ஷைன் மீனிங் வரும். சூன் ஆட்டா ஃப்ளார், அது பானியோடு சேரும்போது ஜல் மீனிங் வரும், வாட்டர். ஓகேயா? ஸோ இந்த ஒரு வேர்டு பானியில் 3 மீனிங்ஸ் ஹைட் ஆயிருக்கு, चिपका हुआ है. ओके, गॉट इट. दोहा मीनिंग पाकलाम. रहीम का कहना है कि जिस तरह मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता,
और आटे का अस्तित्व जल के बिना नम्र नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा। Rahim says that just as a pearl cannot be valued without its luster and flour cannot exist without water, in the same way, man should always be humble or polite in his behavior, without which his value is depreciated. So, this example comes under Slesh Alankar. ठीक है, யமக் அலங்காரம் ஸ்லேஷ் அலங்காருக்கும் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, யமக் அலங்காரில் 2 டைம்ஸ் சேம் வேர்ட் வரும் வித் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங், வேரஸ் ஸ்லேஷ் அலங்காரில் 1 वर्ड अटैच्ड विथ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, समझा आप लोगों को? वेरी गुड। ओके, क्लाइमैक्स को वंदाची शॉर्ट एंड स्वीट और कुट्टी रिकैप। अलंकार काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला हो। अलंकार के 2 प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। शब्द अलंकार के मुख्य 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाठानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार कोई वर्ण 2 बार आए हो। वृत्यानुप्रास अलंकार कोई वर्ण अनेक बार आए हो। लाठानुप्रास अलंकार एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, समझने पर अर्थ भिन्न हो। श्रुत्यानुप्रास अलंकार शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। अंत्यानुप्रास अलंकार पंक्तियां का अंतिम वर्ण समान हो। यमक अलंकार किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार आए पर उनके अर्थ अलग अलग हो। श्लेष अलंकार एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो अर्थ अलंकार। अंटिल देन, बाय टू ऑल माय कुट्टी लवली चलम्स, टेक केयर।